Hello children, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss about a new chapter from your class 6 science book named Getting to Know Plants. Okay, in which we will discuss about the different parts of the plant and about their functions. So, now you can see a picture. This is a picture of a plant. Okay, a picture of a plant with its different parts. What is this? This is the root, this is the stem, this is the fruit, these are the leaf, and this is the flower. Okay, this is all about the plant and its different parts. So when you see around yourself, you can see a variety of plants which are different from each other in their characteristics. Some plants are small, some are big, some are about to your height, some have big fruits, some have small fruits, some have red flowers, some have blue flowers, some have yellow flowers, some have thick and hard stem, some have green and soft stem. So like this, different plant have different characteristics, and according to their characteristics we classified them into different groups. So now we study about the classification of plants according to their characteristics. We classified them into 5 groups according to their characteristics. What are they? Herbs, shrubs, trees, creepers and climbers. First we will discuss about the herbs. What are the herbs? Herbs are those plants which have short height. Okay, their stems are green and tender. मतलब उसका जो हाइट होता है वो छोटा होता है, उसका जो तना होता है वो हरा और बहुत सॉफ्ट टेंडर होता है. फॉर एग्जाम्पल व्हीट, राइस, टमाटो, मस्टर्ड, सनफ्लावर, carrot, ginger, turnip, etc. So, herbs are of short height. Their stems are green and tender. Example: wheat, rice, tomato, mustard, sunflower, carrot, ginger, turnip, etc. So, this is all about herbs. Now, we will study about shrubs. Okay? Shrubs are about to your height. These are about to your height, not very short, not very tall. Stems are hard. These have hard stems. Branches appeared at the base of the stem. उसका जो branches होता है वो तना का नीचे से निकला हुआ रहता है. एग्जाम्पल लेमन, रोज, जैस्मिन, हिना, चाइना रोज. चाइना रोज का और एक नाम है हिबिस्कस, तुलसी, etc. Okay. So shrubs are about to your height, stems are hard, branches appeared at the base of the stem. Example lemon, rose, jasmine, henna, china rose or hibiscus and tulsi, etc. So this is all about shrubs. Then we will discuss about trees. Trees are very tall. Okay. These are very tall. बहुत लंबा होते हैं, ऊंचा होते हैं. Stems are thick and hard. इसका जो तना होता है वो बहुत मजबूत और मोटा रहता है. थिक रहता है और मजबूत रहता है. ब्रांचेस appeared higher upon the stem. स्टेम का ऊपरी हिस्सा में इसका ब्रांचेस रहता है. श्रब्स में क्या हुआ था? ब्रांचेस उसका स्टेम का नीचे से निकला हुआ रहता है, बेस से. बट ट्रीज में ब्रांचेस हायर अप appeared higher up on the stem. ऊपरी हिस्सा में ब्रांचेस दिखाई देता है. फॉर एग्जाम्पल मैंगो, नीम, बनियान, जामुन, पाम, टीक, सैंडलवुड, कोकोनट, etc. So trees are very tall, stems are thick and hard, branches appeared higher up on the stem. Examples mango, neem, banyan, jamun, palm, teak, sandalwood, coconut, etc. Now we will study about creepers. Okay, what are creepers?
plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. जो प्लांट का जो तना होता है वह बहुत कमज़ोर होता है और जो सीधा खड़ा नहीं हो पाता है और ज़मीन में रेंगते हुए बढ़ता है, उसको हम लोग क्रीपर्स बोलते हैं. ओके, एग्जाम्पल है पम्पकिन, बटल गॉड, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, कुकुम्बर एट्सेट्रा. So plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. Example pumpkin, bottle gourd, watermelon, strawberry, cucumber etc. So जो प्लांट का स्टेम बहुत वीक होता है, जो कि खड़ा नहीं हो पाता है, ज़मीन में रेंगते हुए बढ़ता है, उसको क्रीपर्स बोलते हैं. ओके, देन वी विल लर्न अबाउट क्लाइंबर्स. The plants with weak stems that take support and climb up are called climbers. So ये भी weak stem वाला ही प्लांट है, पर ये क्या करते हैं, दूसरे का सहारा जब मिल जाता है, इसको कोई लकड़ी का हो, कोई पेड़ का हो, जब सहारा मिल जाता है तो वो उसके सहारे ऊपर क्लाइंब कर सकता है, इसलिए उसको क्लाइंबर्स बोल के बोलते हैं. सो प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स डेट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. एग्जाम्पल बिटर गॉड, स्वीट गॉड, ग्रेप वाइन एट्सेट्रा. सो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स दोनों का ही स्टेम वीक रहता है, पर क्रीपर्स क्या करते हैं, सीधा खड़ा नहीं हो पाते हैं, वो ज़मीन में स्प्रेड करके बढ़ते हैं, और क्लाइंबर्स क्या करते हैं, दूसरे का सहारा लेके ऊपर चढ़ते हुए बढ़ते हैं. इतना ही उनमें फ़र्क है. सो दीज आर ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट. नाउ वी विल स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट. सो व्हाट आर द प्लांट्स? Stem, roots, fruit, flower and leaves. First, we will discuss about the stem. Tana, stems. Stems bear leaves, branches, buds, flowers and fruits. Stem helps in upward movement of water. The water and minerals go to the leaves and other plant parts attached to the stem. स्टेम में क्या क्या होता है? स्टेम में लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, बड जिससे हमारा फ्लावर होता है वो बड होता है, फ्लावर होता है और फ्रूट भी होता है. स्टेम ये सब को वहन करता है, बियर करता है, ये सब स्टेम से लटका हुआ रहता है. स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. पानी, जो पानी की पौधा अपने रूट के द्वारा ज़मीन से या मिट्टी से खींचता है, जो पानी विथ मिनरल्स, वाटर विथ मिनरल्स, जो पानी पोषक तत्व के साथ पेड़ ज़मीन से खींचता है, वो वाटर और वो मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम. स्टेम के द्वारा वो लीव्स तक पहुंचता है और स्टेम का अदर पार्ट तक भी प्लांट का अदर पार्ट तक भी पहुंचता है. तो स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को पकड़े रहता है. स्टेम किस में हेल्प करता है? पानी और मिनरल को ऊपर की तरफ मूवमेंट करने में हेल्प करता है, और वो पानी और मिनरल्स ऊपर की ओर चढ़कर लीव्स तक पहुंच जाते हैं और प्लांट का दूसरे पार्ट तक भी पहुंच जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, लीफ क्या करता है, वो पानी और मिनरल को लेके सनलाइट से अपना खाना बनाता है, और जब खाना बना लेता है तो वो खाना फिर से क्या होता है, स्टेम के द्वारा ही पेड़ के डिफरेंट पार्ट तक पहुंच जाता है. सो क्या होता है, द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स ट्रैवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट. सो जो खाना लीफ तैयार करता है
पत्ता तैयार करता है वो खाना भी स्टेम के द्वारा ही प्लांट का डिफरेंट पार्ट को जाके स्टोर होता है, जमा होता है। सो स्टेम आर एज टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट, इसलिए स्टेम को हम लोग कह सकेंगे कि ये टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट के जैसा काम कर रहा है। आप लोग देखे होंगे एक ही रास्ता में गाड़ी इधर से जाता होगा उधर से आता होगा, उनके लिए दो अलग अलग रास्ता नहीं रहता है, एक ही रास्ता में दोनों तरफ से गाड़ियाँ आते रहता है। उसी तरह स्टेम भी टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट के जैसा है, क्योंकि नीचे से पानी और मिनरल्स ऊपर चढ़ के लीफ तक जाते हैं, और जब लीफ खाना बनाता है तो वो खाना भी नीचे नीचे आता है और दूसरे पार्ट को भी जाता है स्टेम के द्वारा ही। इसलिए दोनों काम स्टेम का हेल्प से होता है, इसलिए स्टेम को टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट बोल के हम लोग बोलते हैं। ओके, देन वी विल स्टडी अबाउट द रूट्स। रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फार्मली टू द सॉइल। रूट किस में हेल्प करता है? ये प्लांट को मिट्टी के ऊपर दृढ़ता के साथ पकड़े रखने में, खड़े रखने में सहायता करता है। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, वो सॉइल में, मिट्टी में प्लांट को गाढ़े हुए रखता है, खड़ा करके रखता है। The roots absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant. रूट क्या करता है? वाटर और मिनरल्स मिट्टी से खींचता है और जो कि स्टेम के द्वारा प्लांट का डिफरेंट पार्ट को जाता है। सो root help in holding the plant firmly to the soil. They anchor the plant to the soil. The roots absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant. This is all about root. Then we will discuss about the types of the roots. What are the types of the root? We will discuss about two type of root. One is taproot and second is fibrous root. Taproot and fibrous root. You can see here two pictures. Okay, 1, 2. This is the picture of taproot and this is the picture of fibrous root. In taproot, in the first figure, the main root is called taproot. देखो यहाँ पे एक बीच में मेन रूट है, बीच में ये मेन रूट है, इसको टाप रूट बोला जाता है। एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लैटरल रूट्स, और जो यहाँ से निकला हुआ है ना छोटा छोटा रूट्स, उसको लैटरल रूट्स बोल के बोलते हैं। तो ये जो बीच में मेन रूट है ये है टाप रूट, एंड ये जो छोटा छोटा स्मॉल रूट्स है ना इसको लैटरल रूट बोल के बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कैरेट, रेडिश, बीटरूट एट्सेट्रा। जब तुम कैरेट खाते हो, रेडिश खाते हो, बीटरूट खाते हो, तुम देखे होगे वो भी रूट का ही रूप है। हम लोग जो कैरेट खा रहे हैं, रेडिश खा रहे हैं, बीटरूट खा रहे हैं, वो रूट ही है, वो रूट ही है। तो वो जो मोटा हिस्सा रहता है वो टाप रूट है, मेन रूट है, उसको टाप रूट बोलते हैं। और उसमें से देखे होंगे छोटा छोटा रेसा जैसे निकला रहता है, उसको बोलते हैं लैटरल रूट। सो दिस इज़ द मेन रूट टाप रूट एंड दीज आर द लैटरल रूट्स। सो द मेन रूट इज़ कॉल्ड टाप रूट and the smaller roots are called lateral roots. Example carrot, radish, beetroot etc. तो आप लोग समझ गए टैप रूट के बारे में। अभी हम लोग पढ़ेंगे फाइब्रस रूट के बारे में। फाइब्रस रूट क्या होता है? इन द सेकेंड फिगर, ये सेकेंड फिगर में ऑल द रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। ये जो सेकेंड फिगर में क्या है, सभी रूट एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, सभी जितना भी रूट है एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये जो सभी रूट है, ये जितना भी रूट है ना, ये एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अलग कुछ है क्या इसमें? जैसे मेन रूट है और ये स्मॉल रूट से, इसमें ऐसा कुछ मेन और स्मॉल नहीं है, ये सभी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। ऑल द रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। फॉर एग्जाम्पल ऑनियन, ग्रास, व्हीट, कोकोनट, पाम एट्सेट्रा। ऑनियन, ग्रास, व्हीट, कोकोनट और पाम ट्री का जो रूट होता है वो इस तरह का होता है, उसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा रूट के बारे में। दिस इज़ ऑल अबाउट रूट्स। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पत्ते के बारे में और
फ्लावर के बारे में, लीव्स और फ्लावर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसको अलग अलग से मैं समझाऊंगी, क्योंकि अभी इसमें शामिल करने से वो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा बड़ा वो है। उसके बारे में जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं यहीं पे आज का वीडियो रख रही हूँ। बाय चिल्ड्रेन।